Good morning. Very good morning to all of you. Yesterday we started properties of determinant. It is one of the important part in this chapter, determinant. First property is the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. It means if we rows and columns interchange, then the value of determinant is remains same. So this is an example. It is a determinant of order 2. We interchange the first row with first column, second row with second column. The value of determinant of first is minus 17. The value of new determinant also minus 17. Then means the determinant value of determinant remains same. Second property is if any two rows, only two rows or only two columns are interchanged, R1 interchange with R2 or R2 interchange with R3, then the value of determinant changes, but in sign only. In sign only. Okay. The third property is if any two rows of determinant are identical, the most important property, identical, same, अगर है तो the value of determinant 0. ओके और इसी का ऐसी ही प्रॉपर मैंने टेस्ट में डाले थे. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ property number 3. These two rows are identical, second row and third row. The value of determinant is 0. See that the first column and third column are identical, so therefore the value of determinant is 0. Property number 4. If all elements of a row are multiplied by a number k, then the value of new determinant is also k times the value of original determinant. Okay, this is a determinant. Its value is 23, and if we multiply the second row by 5, the new determinant becomes this one, d dash. And if we find the value, we get it is the 5 times the original determinant. Okay, do you understand? एंड इसी को हम लोग कॉन्वर्सली ले तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी रो, एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम. ओके, डू अंडरस्टैंड इट? समझ में आ गया सभी? प्रॉपर्टी नंबर 4 भी क्लियर हो गई? ओके, वेरी गुड. Am I audible? Is my voice clear and loud? Okay, good. So this is the property number 4th. अब हमको property number 5th देखनी है, जो कि again one of the important property है. Now property number 5th. Property number 5th.
And this property is if each element of a row or column is expressed as a sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. See that property. If each element, each element of a row or obviously column is expressed as sum of two numbers, then the value of determinant, then the determinant बोल सकते हैं, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. Okay, what it means, जरा इसको अच्छे से समझ ले हम लोग. तो क्या कहते हैं कि each element of a row, यानी एक रो के सारे एलिमेंट expressed as sum of two numbers, that the determinant can be expressed as sum of two determinant. Okay, let's say example से और भी तुम्हारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे. एग्जाम्पल. ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखो क्या करना है हमको. सपोज देयर इज अ डिटर्मिनेंट डी and here a1 a2 a3 with plus x1 x2 x3, फिर आएगा समझ लो b1 b2 b3 c1 c2 c3. Suppose we have a row and all element in that row are expressed as a sum of two elements. ध्यान देना, sum of two elements like this one. So we can express that D as a sum of two determinant. दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो उसको. कैसे? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर R1 में के सारे एलिमेंट, देखो R1 के सारे एलिमेंट क्या है, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू, देखो यहाँ पे एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू नंबर्स. और बी सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो और थर्ड रो पहले एज इट इज लिख लेंगे दोनों डिटर्मिनेंट में. करेक्ट. हाँ, और अब यहां पर क्या करेंगे, द फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज a1 a2 a3, मतलब उसमें के एक एक एलिमेंट ले लो, और सेकंड डिटर्मिनेंट डालेंगे x1 x2 x3. क्लियर हो गया? स्प्लिट कर दिया हम, ऐसा क्या कह सकते हैं, इसको स्प्लिट किया हमने. फर्स्ट डिटर्मिनेंट में a1 a2 और a3 ले लिए, तो सेकंड डिटर्मिनेंट में x1 x2 और x3 ले लिए. अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? ऐसे स्प्लिट कर सकते, ऐसा इसका मीनिंग हुआ. ओके, अब एक मिनट ध्यान देना, इसी को हम लोग उल्टा कह सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नोट बना सकते हैं, और वो है कि दिस इज नथिंग बट द एडिशन. हाउ टू ऐड? एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट.
बिल्कुल कॉन्वर्सली लो, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट कैसे कर सकते हैं? तो देखना, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट के लिए अगर ये 3/3 का है, मतलब ऑर्डर 3 वाला है, तो उसके 2 रोज सेम होना, तो थर्ड रो को ऐड कर सकते हैं। करेक्ट? यानी कैसे? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, 2 3 -1 5 0 3 प्लस 5 0 3 4 8 -7, और यहां पर अब कुछ भी आ जाए, 4 -7 and 3. So we can add them. Conversely part, we can add them. Okay? अब इसके एडिशन कैसे आएगी फिर? इसका आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल याद रखो, देखो इसका सेकंड रो है ना, सेम है, इसका थर्ड रो भी सेम है, तो इसका मतलब हम लोग सेकंड रो एंड थर्ड रो को एज इट इज लिख लेंगे। और यहां पर बिल्कुल सही है पुष्कर, वेरी गुड। श्रवणी, शाकार, वेरी गुड। आर्या, बेटा आर्या तूने क्या किया रे? 8 कैसे जाएगा बेटा? 2 + 4 8 होते क्या रे? आर्य, ऐसा होता क्या बेटा? क्या करेंगे? 2 + 4 करना क्या है, समझा क्या? 2 + 4, ये और ये अलग अलग है, इन दोनों को कर दो ऐड। इधर आएगा 3 - 7 -1 + 3। करेक्ट? मल्टीप्लीकेशन नहीं, एडिशन करना है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? हाँ। और बिल्कुल इसका ही कॉन्वर्स पार्ट ये होता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 में, 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंगल में, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर ऑर्डर 3 है तो 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो, और अगर ऑर्डर 2 है तो 1 रो या 1 कॉलम आइडेंटिकल हो। इट इज अप्लीकेबल फॉर कॉलम ऑल्सो, रिमेंबर दैट, it is applicable for a column also. Example, चलो बताओ कैसे करेंगे इसको, हाउ टू ऐड देम? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दैट एडिशन पॉसिबल? देखना, एडिशन पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि पहले तो वो है, एडिशन पॉसिबल होनी चाहिए। एंड दैट, व्हाई इज द एडिशन पॉसिबल? हियर फर्स्ट कॉलम सेम, थर्ड कॉलम भी सेम, इसलिए हम लोग फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज डाल देते हैं। करेक्ट है ना, इसलिए पॉसिबल है। करेक्ट? हाँ। अब एडिशन कैसे करेंगे? तो सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करो, मतलब 0 + 7
8 minus 3, 6 plus 4. करेक्ट? क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. We can express single determinant into the sum of two determinant, or we can add two determinant, means convert in two determinants into a single determinant. वो क्लियर हो गया तक? And the last property, that is the most important property and difficult one. Property number 6. Now the property number 6. See the property. If a constant multiply to all elements, if a constant multiply to all element of any row, अब ये रो के साथ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये कॉलम के साथ भी तो हो सकता है, एंड इज एडेड टू corresponding element of corresponding elements of corresponding elements of any other row. अदर रो चाहिए, ऑफ कोर्स रो रहेगा तो हम कॉलम भी ले सकते हैं. देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is so obtained is same as that of the original determinant. ओके, अब देखो इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है, थोड़ा ध्यान देना. कांस्टेंट मल्टीप्लाई टू all elements of a row and that are added to the corresponding element of other row. The value of determinant is same as that. The value of determinant is same as that. Okay, इसका मतलब क्या तो समझ लेते हैं. अब देखो इसको कैसे करते रहते. समझ लो एक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, और अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि R3 मतलब थर्ड रो के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई किया. इन जनरल लिखना है तो K से मल्टीप्लाई किया एंड एडेड टू द फर्स्ट रो. उल्टा लिखना पड़ता क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन मैथमेटिक्स में लिखते हो क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस K टाइम्स R3, and that's why R3 changes, sorry R1 changes, R3 not changes, R1 changes, remember that R1 changes, ऐसा भी नहीं होता है. तो चलो इसको इन जनरल बना हुआ है, ith row changes as ith row plus K times jth. ओके ओके, अब इसको कैसे करना है हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं. विदाउट एग्जाम्पल ये समझ ही नहीं सकोगे. नाउ एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ D. Come on, fast, find out that value. चलो जल्दी से वैल्यू निकालो.
कितनी है वैल्यू? इतना टाइम लग रहा क्या? ओके, बाप रे बाप, उत्कर्ष श्रीवाते, श्रुति मिश्रा, बेटा एक बार मुंह पे पानी मार के आना पड़ता। वैल्यू गलत हो रही है। इट्स 19। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ऑपरेशंस कर रहा हूं, देखो इसी में क्या करना है मुझे, दैट R3 is multiplied by suppose 5 and added to the R1. So obviously here R1 changes because we are adding to R1. देखना मैं तो बार बार बोला, उल्टा लिखूंगा मैं। Here क्या बोला था, देखो एक मिनट ध्यान देना, a constant multiply to all elements means 5 is multiplied to all elements of R3. 5 is multiplied to all elements of R3 and is added the corresponding element of any other row, and this is added to the other row means R1. तो अब मुझे बताओ इस वजह से नया डिटर्मिनेंट क्या बना? व्हाट इज द न्यू डिटर्मिनेंट? ऑफ कोर्स हियर R1 is changing means R2 and R3 keep as it is, keep in mind. देखना मैं फिर से कह रहा हूं, ओनली R1 इज चेंजिंग, सिर्फ R1 चेंज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, अब यहां पर देखो क्या करना है, ऑलरेडी 2 -1 3 is there and we have to multiply what? ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने को बोला था? 5 से। चलो 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, मीन्स +5 टाइम्स -1 +5 टाइम्स 3 and +5 टाइम्स 2। चलो ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते इसको। ओके, तो अब समझ लो यहाँ पर है, तो हमको क्या कहता कि R3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो चलो 5 से मल्टीप्लाई करते, ये लिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, 5 टाइम्स -1 +5 टाइम्स 3 and +5 टाइम्स 2। करेक्ट? और अब इस तरह से कैलकुलेशन क्या होगी, तो 5 -3 so 14 and it's 10 plus 3 13, it's 405 -132। okay, do you understand? क्लियर क्या हुआ, क्या क्या हुआ? कमन फास्ट, क्या क्या समझा क्या? बस R1 का एलिमेंट लिया, 5 टाइम्स R3 का एलिमेंट लिया, और ये सारा R1 में किया हमने।
गॉट इट? अब यहां पर इसकी वैल्यू निकालो बरा, कितने आएंगी वैल्यू? -3 इन द ब्रैकेट, 0 -15, -14 in the bracket, 8 -5 करो, और +13 in the bracket, 12 -0 सॉल्व करो। तो कितना है आंसर इसका? 45 माइनस आया, इसका +5, 8 माइनस +5, 182 and plus 13 into 12, 156। घूम घाम कर आंसर यही आना चाहिए ना रे, रूल है ना। चेक करो, आया क्या आंसर? सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? इतना सब कुछ करने के बाद में भी आंसर हमारा क्या आ रहा है? सेम। तो याद रहे कि हम लोग अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, और वो नंबर ले जाकर किसी दूसरे अनादर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करें, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एंड सेम एज फॉर कॉलम, बट ये क्या देखना, रो के एलिमेंट में ही ऐड हो गए, और कॉलम के एलिमेंट्स में भी ऐड हो गए। ऐसा नहीं चलेगा कि सेकंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और थर्ड रो कॉलम को ऐड करो, नहीं, कॉलम में नहीं, रो के रो में ही और कॉलम के कॉलम में ही। अनदर एग्जांपल देखना है, ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखियो, और फिर तो एग्जांपल्स जब देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज एक डी ले रहा हूं, ओके, इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, और यहां मैं ऑपरेशन दे रहा हूं तुमको, दैट इज द अरे हम लोग कॉलम लेना है, सॉरी, इट्स अ कॉलम, कॉलम मींस C3 C3 C2। चलो,
चलो इसका आंसर कितना है, पहले डी का आंसर कितना है यहाँ? अरे बाप रे, मयूर, ऋषि, पुष्कर का आंसर आ गए, मृणाली का अलग आंसर आया, सोहम का, श्रेविका का आंसर आ गया, उन्नति का आंसर आ गया, और सारे आंसर गलत गलत है, सारे अलग आंसर आ रहे हैं। और मोस्ट कॉमन आंसर है 79। चेक करो बा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं निकाला। अब सोचो किसने कहा ढेप खाई। देखो देखो कहाँ कहाँ ढेप खा ली। मिली क्या? 79 is the correct answer. मुझे करना पड़ेगा। -2 in the bracket, -1 -6, -5 in the bracket, it's 2 -15 and +0, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और ये हो गया -2 इंटू -7, that is +14, and -13 into -5 +65, so it is very clear 79 है ना। अभी भी ओम वर्मा, नेहल गुमले 51 में अटके हैं। ध्यान दो रे बाबा, अगर तुमको ये नहीं आया, देखो बरा, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हो गया था, फिर तो आना चाहिए ना। ऐसे एग्जाम्पल हमने करके देखना चाहिए था, बड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। अब देखो C3 चेंजेस, C3 + 2 टाइम्स C2 है, मतलब कौन से दो कॉलम में चेंजेस नहीं होंगे? Which column we have to keep as it is? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। We have to keep first column and second column as it is, and we have to change third column 0 3 1 में ऐड करेंगे +2 टाइम्स। कंसेप्ट समझ लो, +2 टाइम्स। फिर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी कि हम लोग डायरेक्ट ओरली करेंगे ये सारा। 2 टाइम्स व्हाट? C2 यानी कौन? C2 के एलिमेंट, और C2 के एलिमेंट कौन है? 5 -1 and 2, करेक्ट। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी इसी तरह से दिखेगा, D is equal to -2 2 5 5 -1 2, it's 10 1 5, करेक्ट। और इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, चेक करो इसका आंसर क्या था। D डैश न्यू डिटरमिनेंट, D डैश का आंसर ऑब्वियसली कितना आना चाहिए? आएगा ना, करके देखो, आएगा, पक्का आएगा 79। ओके, चलो बेटा, सबको समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, इजी प्रॉपर्टी, बट मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी, बहुत यूजफुल है। मैट्रिसेस में भी यूजफुल है, यानी 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों को जो मैट्रिसेस पढ़ना है उसमें भी हमें इसे बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, property number 7, the property number 7, last property, that is called triangle property.
if each element of a determinant above or below the main diagonal is 0, then the value of determinant is equal to the product of the diagonal elements. बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना. if each element, या ऐसा कह सकते हैं all elements, each elements of a determinant below, above or below, above or below the main diagonal, that main diagonal is also called as the principal diagonal. Main diagonal, that is the called principal diagonal. Okay, each element of a determinant above or below the main diagonal or the principal diagonal is 0, then the value of determinant is 0. Sorry, is product of the diagonal elements. The product of its diagonal elements. ओके बहुत ही सिंपल है, तुम खुद समझ सकते हैं. सबसे मेन डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं पहले वो समझ लो तो बहुत आसान है. सी दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. Suppose this is the determinant d, then याद रहे here that a1 b2 and c3, मतलब ध्यान देना रे बाप, ये जो है ना दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल. इन्हीं क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल और एलिमेंट डायगोनल. ओके, हम लोग बोलेंगे ये कौन है, आर एलिमेंट ऑफ main diagonal. Understand? Okay, but remember that a3 b2 and c1 इन्हें हमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहना है, नहीं कहना है. रिमेंबर दैट ये डायगोनल रहेंगे बस मेन डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम के एलिमेंट्स जो रहेंगे वही हमारा मेन डायगोनल है. ओके, याद रहे ये जो मेंशन किए हुए वो. ओके, अब सोचो कि यहां पर एक एग्जांपल ले लूं मैं, डी 2 -3 5 0 7 2 0 0 1. चलो इसका आंसर निकालो, कितना आएगा आंसर, कम ऑन फास्ट, सॉलिड, ईमानदारी से निकालो, प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है और फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. इट्स 2 इन द ब्रैकेट, अगर सॉल्व करें तो 7 - 0,
फिर करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 इन द ब्रैकेट, 0 माइनस 0। क्यों हो रहा है, समझ में आया क्या? सॉल्व करके देखो तो समझ में आएगा। 5 इन द ब्रैकेट, अगेन 0 माइनस 0, द आंसर इज 14। जो कि आंसर कैसा आ सकता था, दैट 2 इंटू 7 इंटू 1, दैट 2 इंटू 7 इंटू 1। इज इट क्लियर, है ना? सो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को फाइनली मैं ऐसा लिख देता हूं कि D इज इक्वल टू, अगर यहां पर A1 B1 C1, 0 B2 C2 और इस बार 0 0 C3 है, या फिर ऐसा है, देखो लोअर एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 है, या फिर ऐसा है A1 0 0 A2 B2 0 और A3 B3 C3। इन दोनों केस में आंसर क्या रहेगा, A1 इंटू B2 इंटू C3, मीन्स डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बस इनका प्रोडक्ट, बिकॉज इसके नीचे की 0 है या इसके अबाउ 0 है, दैट्स वाई A1 इंटू B2 इंटू C3। क्लियर हो गई, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? गुड। सो इसी पे डिपेंड है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2। नाउ द एक्सरसाइज नंबर 4.2, लेट्स स्टार्ट exercise number 4.2। exercise number 4.2, question number first, without expanding the, evaluate the following determinants, without expanding evaluate the following determinant। अब इसी में का फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, इसके कहेंगे लेट D is equal to, it's 1 1, it's 1, got it? It's A B C, and here B plus C, C plus A और A plus B। अब देखो ये एक्सरसाइज उन्हीं को इजी जाएगी जिन लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ समझी नहीं है, तो उसका यूज कैसे करना ये सोचा है, और जिसने लॉजिक लगाएगा, बहुत जरूरी है लॉजिक लगाना। देखो समझाने के बाद में 100% समझ जाएगा तुमको, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, समझ ही जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि तुमको खुद को क्लिक होते आना चाहिए, क्लिक करते आना चाहिए कि हमें यहाँ पर कैसे एडजस्टमेंट करनी है, और वो मुझे सिखानी है। तो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। वी हैव 7 प्रॉपर्टीज। अब 7 प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो और इसका आंसर निकालो, लेकिन इसको एक्सपांड नहीं करना है 1 इन द ब्रैकेट माइनस ए इन द ब्रैकेट बी प्लस सी इन द ब्रैकेट, ऐसा एक्सपांड नहीं करना है, क्लियर क्लियर मेंशन है। तो क्या कर सकते, और जनरली एक याद रखना, हिंट दे रहा हूं, जनरली याद रखना कि जब विदाउट एक्सपांडिंग बोलते ना सॉल्व करने के लिए, तो इसके अंदर इसका जनरली आंसर 90% प्रॉब्लम में आंसर 0 आता, दैट इज द हिंट। विथ विच प्रॉपर्टी नंबर 5 का मतलब दोनों को ऐड करना या स्प्लिट करना,
चलो स्प्लिट कर लिया, सोचो कि ये गायब हो गए, ये मिट गए, सोच कि ये चले गया, अब क्या हो जाएगा? फायदा क्या हुआ? सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो, टाइम लगे तो चलता। वेरी गुड, संभव का आ गया आंसर। उसके बाद में प्रेम गुंडियाल, एबीसी कॉमन निकालो। अरे देवा, कॉमन कहाँ से निकलेगा एबीसी? कॉमन कब निकलता प्रेम? जब वो मल्टीप्लाई में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कॉमन नहीं निकलता। बेटा ध्यान रखना। ओ मुलमुले करेक्ट है। शलाका का कहना है प्रॉपर्टी नंबर 3, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 का मतलब क्या हो जाता है कि जब दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो। कहाँ आइडेंटिकल है यहाँ पे? जीरो आया ना आर्य, बरोबर है, जीरो तो आंसर आना ही है, लेकिन विदाउट एक्सपांडिंग आना चाहिए। एक्सपांड नहीं करते आता तुमको, एक्सपांड करने की परमिशन नहीं है। हर्ष माधव गढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो देखो चलो मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 3। अनुज कलबेंडे बिल्कुल सही है, मृणाली लिख सही है, मोहित गुप्ता करेक्ट हो गया आप। तो देखो कैसे, मैंने हिंट दिया था, मुझे चाहिए जीरो आंसर। देखो कैसे सोचना, अगर मुझे जीरो लाना है मतलब मुझे कोई तो भी दो रोज या दो कॉलम को सेम बनाना है, सेम सेम। और सेम बनाने के लिए देखो कैसे सोचेंगे आप, सोच लो। देखो देखो जम जाएगा आगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, C2 को C3 में ऐड कर देंगे, मतलब 1 टाइम्स करके। प्रॉपर्टी नंबर 6, k टाइम्स ऐड कर देना। वी कैन ऐड C2 k टाइम्स C2 into k एंड एडेड टू C3। तो k की वैल्यू 1 समझना है यहाँ पे, मतलब C3 एंड C2 को ऐड कर देंगे। और चेंज किसको करेंगे? C3 को। देखो उल्टा लिखना चाहिए। वी आर adding all elements of C2 in C3, C2 in C3। तो ऑब्वियसली यहाँ फायदा क्या होगा? सोचो 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 क्या होगा, सोचो 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 क्या होगा। 1 1 1, ए बी सी, फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज। और थर्ड में क्या होगा? ऑलरेडी बी प्लस सी था, ए ऐड हो गया, तो इट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। अंडरस्टैंड क्या किया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ एंड वी कैन टेक कॉमन, जैसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो थर्ड कॉलम में गौर से देखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट कौन है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम। देखो 1 1 1, ए बी सी एज इट इज। और इस थर्ड कॉलम से हमने ये थर्ड कॉलम से कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकाला रे बाबा? तो ए प्लस बी प्लस सी। जब कॉमन निकल गया तो अंदर बचा कौन?
अंडरस्टैंड? यहां यूज किया मैंने प्रॉपर्टी नंबर, हाँ, या फिर ऐसा लिख डालना, प्रॉपर्टी नंबर लिखने से जैसे ए प्लस बी प्लस सी टेकिंग कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, या C3 बोल दो तो भी चलता, डायरेक्ट C3, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3, गॉट इट? अब पहचानो इसको, अब तो बहुत इजी हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, क्या तुम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या तुम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो? इट्स जीरो, रीजन, और रीजन आएगा C1 आइडेंटिकल विथ C3, property number third, and that's why the answer is 0. समझ रहे हैं? है ना इंटरेस्टिंग? हाँ, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत दिमाग लगाने वाली है। अब जिसने अभी इस एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं दिया, या जो अभी पहले सेशन में थे सेकंड सेशन में गायब हो गए, भाग गए, या जो आज अब्सेंट है, उनका ये टॉपिक गया रे बाबा, कुछ के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान ही उनका मालिक रहेगा, क्या करे? डू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि देखो, विदाउट एक्सपांडिंग है ना, तो एक्सपांड करना नहीं है, एक्सपांड करना नहीं है तो वैल्यू निकालनी है। अरे भाई, विदाउट एक्सपांडिंग की वैल्यू सिर्फ हमारी एक ही प्रॉपर्टी देती, आइडेंटिकल रहा तो वैल्यू जीरो, वैल्यू देने वाली प्रॉपर्टी एक ही है, जीरो। इसका मतलब हमने दिमाग में घंटी बजानी चाहिए कि अरे यार, दो रो या दो कॉलम सेम दिखने चाहिए। अगर दो कॉलम दो रो सेम दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो यार, एडजस्ट होता है कुछ, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? अथर्व मुंडे, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, क्या जरूरत है तुमको? सेकंड बैच है कि नहीं है? अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, जो समझा रहा हो समझो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है? हाँ, चलो अब सेकंड एग्जांपल में जल्दी से मुझे बताओ, सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड हिंट, क्वेश्चन नंबर का सेकंड क्या करोगे, देखते हैं तुमको क्या जमता, विदाउट एक्सपांडिंग। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फटक करके आंसर आ जाता है, एक ही स्टेप का आंसर है। वेरी गुड अथर्व, देव, दूसरा अथर्व, दिया, शविका, मृणाली, उन्नति, मयूर, मयूर नहीं, वेरी गुड, ओम, ऋषि, मोहित, बिल्कुल सही है, मधुरा गलत, अरे यार, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाओ, कॉमन निकालो, एक ही लाइन लिखनी पड़ती सिर्फ, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, थर्ड रो से 3x निकालो, डायरेक्ट बन जाता है, चेक कर लेना, आएगा तुमको, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? चलो, ओके, तो अभी बाकी का कल, बाय।